नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुप्पा पुलिस स्टेशन में सीपीआई श्रीनिवास अलापुरी के नेतृत्व में होली त्योहार के संबंध में शांति बैठक की आयोजित। धारवाड़ तालुके के मंसूर गांव में देखे गए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मी कर रहे संघर्ष। ओवैसी ने हैदराबाद को पीड़ा, डर और अन्याय के सिवाय कुछ नहीं दिया, बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता। ईडी हिरासत से भी सीएम केजरीवाल कर रहे दिल्ली के लोगों की फिक्र, अतीशी ने बताया, जारी किया ये आदेश। पाम संडे का त्योहार मना रहे ईसाई समुदाय के लोग, कांग्रेस नेता शशि थरूर भी हुए शामिल। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही होली। अब समाचार विस्तार से। शनिवार चिटकुप्पा पुलिस स्टेशन में सीपीआई श्रीनिवास अलापुरे के नेतृत्व में होली त्योहार के संबंध में शांति बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीपीआई श्रीनिवास अलापुरे ने होली को शांति से मनाने को कहा और सुझाव दिया कि होली त्योहार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और चिटकुप्पा जो शांति व भाईचारे से जाना जाता है, त्योहार को कानून के दायरे में रहकर मनाना चाहिए और यहाँ सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून व्यवस्था भंग न हो। कानून सबके लिए एक है, जो कानून का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पीएसआई मशूमिया ने बात कर सरकार की ओर से जारी सभी नियमों को विस्तार से बताया और इसका पालन करने को कहा और कहा कि डीजे व लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर क्राइम पीएसआई सुभाष, सैयद शानुल हक बुखारी, मारुति सिरके, सैयद रशीद अली पटेल, पूर्व सभा सदस्य, कई ग्राम के प्रमुख आदि उपस्थित रहे। चिटकुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ನನಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 25 ತಾರೀಕು SLC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರು ಪಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೀರು ಬಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ। ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಆಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ। ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ। ಸಮಾಜದಾಗ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ 1% ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗಿಲ್ಲ। ಒಂದೇ 1% ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। 99 ಜನಕ್ಕೆ ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ। 1% ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಓಡಾಡೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ। ಯಾರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ, ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ, ಆಳರಂತ ಕೆಸರಿ ಹರ್ಚೋದು, ಈಗ ತತ್ತಿ ಹೊಡ್ಯೋದು, ಯಾರೋ ಬಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತದಲ್ಲ, ತತ್ತಿ ಹೊಡ್ಬೇಡ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಹೌದು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ। ಬಣ್ಣಗಳು ಆಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಾಮಧನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ। ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಷಯ, ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡ। ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಡ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಹೂವು ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಹೂವು ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ। ಆದ್ರಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗ ಯಾವ ಟೈಪು ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟದ। ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರವ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ 8 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತಾವ। ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ಕಾಮದಹನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಕಾಮದಹನ ಯೂಶಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ, ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಕಾಮದಹನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮದಹನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಮನೆಯಾಗ ಕುಳ್ಳದಾವ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾವ, ರಾತ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ।
धारवाड़ तालुके के मंसूर गांव में देखे गए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। आज सुबह से ही वन विभाग के कर्मचारी मंसूर गांव के एक खेत में डेरा डालकर 100 साल पुराने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेंदुए के पद चिन्ह के आधार पर वन विभाग कर्मियों ने उस स्थान पर पिंजरा लगा दिया है। मंसूर के ग्रामीण की मदद से तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मी द्वारा जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के माधवीलता हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अपने आक्रामक व्यवहार से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की छवि से चिंतित नहीं है और उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम के नेता ने इस निर्वाचन क्षेत्र को पीड़ा, डर और अन्याय के सिवाय कुछ नहीं दिया है। शास्त्रीय नर्तकी और उद्यमी लता 13 मई को होने वाले आम चुनाव में ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए तैयार है। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 2004 से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। वह भाजपा के कट्टर आलोचक ओवैसी की अपने आक्रामक व्यवहार से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की छवि से चिंतित नहीं है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया उन्होंने ओवैसी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र को पीड़ा, पिछड़ेपन, अन्याय, डर और असुरक्षा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए मतदाताओं के समक्ष निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविकता पेश करना और उन्हें यह बताना महत्वपूर्ण है कि वे उनके लिए कैसे काम करेंगे। हालांकि मतदाता इसमें अवगत है। लता ने कहा कि पहले हुए चुनावों में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद जाने की कोशिश की तो ओवैसी खुद उन्हें रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आज वही लोग उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वह डर पैदा करने के किसी हथकंडे से नहीं डरेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से ही रविवार को जल मंत्रालय को आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी मंत्री आतिशी मारलेना ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मारलेना ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए सोच रहे हैं और दिल्ली के लोग केजरीवाल के परिवार का हिस्सा हैं। हिरासत में भी सीएम दिल्ली के लोगों की तकलीफों को लेकर काफी चिंतित है। जल मंत्रालय को दिए आदेश की कॉपी दिखाते हुए मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली वासी पानी और सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं और तत्काल प्रभाव से लोगों की समस्याओं का हल निकाला जाए। आतिशी मारलेना ने बताया कि केजरीवाल ने आदेश में कहा दिल्ली वासियों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। देश भर में ईसाई समुदाय के लोग पाम संडे का त्योहार मना रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम के सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल से कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग प्रेयर कर रहे हैं और हाथों में खजूर की डालियां लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस दौरान पाम संडे जुलूस में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह एक खूबसूरत अवसर है। इस क्षेत्र में सेंट जोसेफ कैथेड्रल बड़ी जामा मस्जिद और राज्य के सबसे पुराने गणेश मंदिर में से एक मंदिर है। यह सब तिरुवनंतपुरम के मध्य में कुछ वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसीलिए हमारे लोगों के अंतर धार्मिक एकजुटता और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का सम्मान करना हम सभी के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक मूल्य है। उसी भावना से मैं यहाँ पाम संडे जुलूस में शामिल हुआ हूँ। मुंबई सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जन लोकपाल आंदोलन का हिस्सा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को शनिवार को विडंबनापूर्ण बताया और साथ ही उन्होंने मामले की गहन जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की। हजारे ने एक बयान में केजरीवाल पर करोड़ों देशवासियों का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया और अफसोस जताया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मैं बहुत दुखी हूं। यह विडंबनापूर्ण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के मेरे सहयोगी को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दशक की शुरुआत में जन लोकपाल की मांग को लेकर जन आंदोलन किया गया था। हजारे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आंदोलन के प्रमुख चेहरे बनकर उभरे थे। बाद में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी आप बनाई और सिसोदिया के साथ चुनाव जीते। आंदोलन के राजनीतिक रूप लेने के बाद हजारे ने हालांकि खुद को इससे अलग कर लिया था। हजारे ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जन लोकपाल आंदोलन का राजनीतिक विकल्प असफल हो गया है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नष्ट हो गया है। देश भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच देश भर में अलग अलग जगहों से होली के जश्न के वीडियो सामने आए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फूलों से होली खेली गई। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में होली के अवसर पर 8वें दिन फागुन मड़ई में गंवर मार नृत्य अनुष्ठान किया। होली के अवसर पर मध्य प्रदेश के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में लोगों की भरी भीड़ है और वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनवाल होली मिलन समारोह में शामिल हुए। बता दें कि देश भर में होली का त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं रंग से होली खेली जाती है तो कहीं लोग विशेष अनुष्ठानों में शामिल होकर इस पर्व को मनाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हेवी स्नोफॉल की वजह से फंसे हुए 328 लोगों को भारतीय वायुसेना ने शनिवार को हवाई मार्ग से सुरक्षित बचाया। वायुसेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि वायुसेना की कारगिल कुरियर सेवा के 2 विमानों ने शनिवार को 328 यात्रियों को हवाई मार्ग से बचाया, जबकि 144 यात्रियों को AAN 32 की 3 उड़ानों के जरिए श्रीनगर से कारगिल पहुंचाया गया। वहीं 12 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह 164 यात्रियों ने 3 उड़ानों में जम्मू से कारगिल तक और 8 यात्रियों ने कारगिल से जम्मू तक का सफर तय कर इस सेवा का लाभ उठाया। अधिकारी के मुताबिक 22 जनवरी को शुरू होने के बाद से नागरिक प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से भारतीय वायुसेना द्वारा कारगिल कुरियर सेवा के तहत अब तक कुल 3,442 लोगों को हवाई मार्ग से बचाया गया है। इस बीच भारी हिमपात के कारण 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। भारतीय सेना द्वारा कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आयोजित प्रस्तावित सेमिनार को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और पूर्व मुख्यमंत्री की आपत्ति के बाद रद्द कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सेना के कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में समान नागरिक संहिता जैसे विभाजनकारी मुद्दे में शामिल होने को लेकर सवाल उठाया था। सेना ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि उसने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में रविवार को आईटीओ फुटओवर ब्रिज पर चढ़कर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप वर्कर्स ने एक बड़ा सा पोस्टर टांगा जिस पर लिखा था, मैं भी केजरीवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। इस बीच रविवार को ईडी की हिरासत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से जुड़ा पहला आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट के जरिए जल विभाग के लिए आदेश जारी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता भी लगातार विरोध कर रहे हैं और केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के मंत्री भी लगातार पलटवार करने में जुटे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हुए बर्बर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े प्रतिशोध की कसम खाई है। पुतिन की टिप्पणी तब आई जब मरने वालों की संख्या बढ़कर से 133 हो गई है। कथित तौर पर यूक्रेन भागने की कोशिश करते समय 4 बंदूकधारियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पुतिन ने 23 मार्च को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान इसका कोई जिक्र नहीं किया। बता दें कि रूस को संदेह है कि यूक्रेन हमलों में शामिल हो सकता है, लेकिन कीव ने किसी भी संबंध से दृढ़ता से इनकार किया है। अपनी फिल्म योद्धा के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री राशि खन्ना ने कहा, धर्म प्रोडक्शन के साथ फिल्म करने का मेरा सपना पूरा हुआ। फिल्म में मेरा किरदार बहुत अच्छा है, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा पुलिस स्टेशन में सीपीआई श्रीनिवास अलापुरी के नेतृत्व में होली त्योहार के संबंध में शांति बैठक की आयोजित। धारवाड़ तालुके के मंसूर गांव में देखे गए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मी कर रहे संघर्ष। ओवैसी ने हैदराबाद को पीड़ा, डर और अन्याय के सिवाय कुछ नहीं दिया। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता। ईडी हिरासत से भी सीएम केजरीवाल कर रहे दिल्ली के लोगों की फिक्र, अतिशी ने बताया, जारी किया ये आदेश। पाम संडे का त्योहार मना रहे ईसाई समुदाय के लोग, कांग्रेस नेता शशि थरूर भी हुए शामिल। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही होली। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।